Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sajdev. In today's lecture, we will be discussing about numericals of price elasticity of demand by percentage or proportionate method. Okay, before starting, children, I would like to tell you all that I am following this book, Frank ISC. You can see it properly. Okay, you can also refer to this book if you're not an ICSE or IC student, you're a CBSE student. You can prefer for numericals to this book. Okay, this is a very good book. Okay, so children, before starting also I would like to tell you all that I'll be doing different types of questions. On an average 12 to 13 questions we will be doing, and it would be segregated into two videos because in I'll be explaining you in detail. Okay, and one more thing I wanted to tell you all that I have made a note here. You can see, you can refer to this note. This note is generally made so that whenever we are solving a question, whatever the answer is coming, we can relate it and we can straight away write which type of demand it is. But elasticity of demand is inelastic, elastic, perfectly inelastic, or unitary elastic. We can be analyzing it frequently. That is why I have written a note here. You can see this, and we can also refer to this with the question. Okay, children, coming down to the topic, you can see the question, it is written on the screen. You can read the question from there. Price of a commodity rises from 5 to 6. Okay, what is the price of a commodity? Okay, before starting also, I would like one more important thing to tell you all, that when price rises, quantity demand falls. Okay, when price falls, quantity demand rises. We have done in the law of demand, we have studied what is the law of demand. क्या बोलता है? प्राइस जब बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड घटता है, प्राइस घटता है क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है. So this is the law. This follows an inverse relationship. What kind of relationship it follows? Inverse relationship. Okay, so I have told you this once again because this will be helping you for solving the sums. It would be an easy way to solve the sum. One more important thing, this P is initial price. I will be writing here, P is initial price. P1 is new price. And del P is change in price. What is del P, children? Change in price. Okay. Now, similarly, what is Q? Q is initial quantity. What is Q1? New quantity. And what is del Q? Change in quantity. I hope this is clear. And this is EP. EP is price elasticity of demand. In most of the questions, we have to find price elasticity of demand, but in some questions, then there is twist and turn. We also have to find del Q, Q1 or P1 or del P, maybe Q, maybe P. Okay, depends upon the question. Okay, we will be solving now. Now we are starting with the first question. You can see it's there on the screen. You can read it from there. And also I would request you to take one notebook with you, so that we will be, I'll be making you understand and you'll be just noting down, so that whenever in future you are about to study this chapter, you can just go through your notebook. Okay, it's not mandatory to come to the lecture and then see the whole lecture again and again. You can revise from your notebook also. Okay, coming to the topic. Now, first question is, price of a commodity rises from 5 to rupees 6. प्राइस क्या हुआ कमोडिटी का? पहले 5 रुपए था, अब 6 रुपए हो गया. ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 80 यूनिट्स. डिमांड क्या हुआ? फॉल हुआ 100 यूनिट से 80 यूनिट्स. ओके, फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड. हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है बाय परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक. Okay, so what is the price? Initial price was 5. Okay, price बढ़ गया which is 6. ठीक है, initial quantity was 100. प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी घट गया 80. मैंने क्या बताया? प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा. ओके, सो अभी क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, विथ विच क्या हो रहा है? क्वांटिटी घट रहा है. तो अभी हम डेल पी कैसे निकालेंगे?
डेल पी का फॉर्मूला है बच्चे, देखिए डेल पी का फॉर्मूला है P1 माइनस पी विच इज 6 माइनस 5। तो क्या आया 6 माइनस 5 1। तो हमारा डेल पी क्या आया 1। डेल पी का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस में चेंजेस आया, पहले 5 रुपए था अब क्या हुआ 6 रुपए हो गया। सिमिलरली हमें डेल क्यू भी निकालना है, डेल क्यू, तो डेल क्यू का फॉर्मूला भी वही होगा Q1 माइनस क्यू। ओके, तो 80 माइनस 100, आंसर आएगा -20, बट हम ये माइनस को इग्नोर करते हुए चलते हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि हमें माइनस साइन इग्नोर करना होता है। व्हाट इज द रीजन, उसके लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाना होगा, मैं लिंक अटैच कर दूंगी। सारा लेक्चर्स बैक टू बैक देखिए तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो 20, सो मेरा चेंज इन क्वांटिटी क्या हुआ 20। अब फॉर्मूला क्या है ईपी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर हमें उसका ब्रेकअप हमने किया था, फिर वो हमने कैसे ब्रेकअप किया था, चेंज इन क्वांटिटी माइनस Q1 माइनस Q बाय Q, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला था विच इज हमारा क्या आया था, डेल Q बाय डेल P इंटू P बाय Q, ये आया था हमारा फॉर्मूले में। तो EP हमारा क्या है, ये इक्वेशन आया था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे देखिए। EP है हमारा डेल Q, डेल Q क्या है हमारा 20। ईपी हमें फाइंड करना है बच्चे, ईपी हमें फाइंड करना है। डेल क्यू क्या है हमारा 20, डेल पी है हमारा 1 इंटू प्राइस क्या है हमारा 5 और क्वांटिटी क्या है हमारा 100। ओके, तो ये 0 0 कट, 2 5 10, इधर 5, तो ईपी हमारा क्या आया 1 विच इज ईपी इज इक्वल टू 1। तो ईपी इज इक्वल टू 1 मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक है। This demand is unitary elastic demand. Okay, got it children? फर्स्ट क्वेश्चन आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमें क्या निकालना था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना था परसेंटेज मेथड में। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाई क्यू। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है प्रीवियस लेक्चर में, आप जाइए वहां पे जाके पूरा फॉर्मूला समझिए कैसे ये फॉर्मूला आया है। इस फॉर्मूला में जब हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा EP1 आ रहा है विच इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कमिंग टू दी सेकेंड टॉपिक, अब हम सेकेंड टॉपिक में आएंगे। अब अगेन एंड अगेन आई नॉट एक्सप्लेन दिस डेल पी एंड डेल क्यू, ये कैसे आप अच्छे से समझ लीजिए। P1 माइनस पी किए तो हमें 1 आया है, Q1 माइनस क्यू किए तो 20 आया है। ओके, नाउ वी विल बी गोइंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हम आएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जस्ट सी। A consumer purchases 20 units of a commodity when its price was ₹4 per unit. Consumer क्या परचेज कर रहा है 20 units of a commodity, 20 यूनिट परचेज कर रहा है जब उसका प्राइस है 4। ठीक है, he purchased 30 units of it when its price falls. वो 30 यूनिट परचेज करेगा जब उसका प्राइस फॉल होगा, कितना रुपया हो गया है 3 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमें नहीं दिया है तो हम डेल पी निकाल लेंगे। 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, हम माइनस को इग्नोर करते हुए चलेंगे। 30 माइनस 20 विच इज 10। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला में पुट करेंगे, वेरी इजी, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। डेल क्यू हमारा है 10, डेल पी है हमारा 1, प्राइस है 4 और क्वांटिटी है 20। 0 0 2 2, तो हमारा EP क्या हुआ 2 विच इज ग्रेटर देन 1। EP हमारा ग्रेटर देन 1 आया, तो ग्रेटर देन 1 हमारा क्या है, इलास्टिक डिमांड। क्या है ये, इलास्टिक डिमांड। गॉट इट, समझ गए, ये सम क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, वो क्या है समझते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ हाउसहोल्ड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स। हाउसहोल्ड क्या किया, अपना डिमांड को इंक्रीज किया, पहले था 40 यूनिट्स अब क्या है 50 यूनिट्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है,
हम और बोल रहा है प्राइस क्या हुआ 10% से फॉल कर रहा है। जो हमारा प्राइस है वो 10% से फॉल कर रहा है। ये एक नोटिंग पॉइंट है। प्राइस हमारा 10% से फॉल कर रहा है। अब व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना है और ये भी बताना है कि ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है, तो चिल्ड्रन बिफोर स्टार्टिंग दिस हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ईपी क्या होता है? ईपी क्या होता है? परसेंटेज, इसको शॉर्ट में लिखती हूं मैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज in quantity demand by percentage change in price। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने इसका ब्रेकअप क्या पढ़ा था? ब्रेकअप पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, इस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का क्या ब्रेकअप था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय इनिशियल क्वांटिटी पढ़ा था हमने इनटू 100, है ना, ये पढ़ा था। सिमिलरली चेंज इन प्राइस का क्या पढ़ा था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या पढ़ा था? चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, ये हमने पढ़ा था बच्चे। और इसका ब्रेकअप क्या था? इसका ब्रेकअप था डेल क्यू बाय क्यू इंटू 100 वेर एज डेल पी बाय पी इंटू 100। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। विथ विच क्या हुआ था? हमने ये सब कटिंग किया था तो हमारा इक्वेशन आया था डेल क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल पी, जिसको हमने ऐसे लिखा था, है ना, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, जिसको हमने कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे? देखिए, ये मैंने पूरा इसलिए बताया ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। क्वांटिटी क्या है? मेरा 40 है। अब वो क्या हुआ? क्वांटिटी बढ़ गया है। क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है 50 का। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि प्राइस में फॉल हुआ है 10%। ठीक है, प्राइस में फॉल हुआ है 10% क्योंकि क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है 10 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है। अभी हमें क्या है? फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है परसेंटेज, हमें फाइंड करना है ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। देखिए, हमें ये फाइंड करना है। हमें दिया क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है, मतलब कि 10% ये दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू हमें दिया हुआ है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, विथ विच हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का क्या फॉर्मूला है? ये है, देखिए, ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय इनिशियल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी यहां पे मैं सॉल्व कर रही हूं, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगा मेरा? 10। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी 10 हो गया। इनिशियल क्वांटिटी मेरा 40 हो गया। देखिए, इनिशियल क्वांटिटी 40 हो गया, चेंज इन क्वांटिटी 10 हो गया, इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 काट, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, तो क्या आया मेरा? क्या आया यहाँ पे? 25 मेरा क्या आया? 25 मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया। 25 मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया। अब मेरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? हमें चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने निकाले 25%। तो अगर हम 25/10 करेंगे तो ये हमारा 2.5 आएगा। 2.5 का मतलब क्या है? EP is more than 1, मतलब कि ये क्या हुआ? ये हमारा इलास्टिक हुआ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये सम आपको। ये क्या हुआ? इलास्टिक डिमांड। दिस इज नाउ इलास्टिक डिमांड। गॉट इट? EP क्या आया हमारा? Elastic demand. So price elasticity of demand is 2.5. The demand is elastic because price elasticity of demand exceeds unity. यूनिटी से बढ़ रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमें ये कुछ नहीं दिया था, प्राइस वगैरह कुछ नहीं दिया था, हमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया था। हमें
सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया था, हमें ये निकालना था और हमें सॉल्व करना था। ये इजी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लेट मी रिमूव दिस। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इज 15 पर यूनिट, द कंज्यूमर बाइज 12 यूनिट्स ऑफ द गुड। ठीक है, क्या बोल रहा है? जब प्राइस 15 रुपीज था, ठीक है, जब प्राइस 15 रुपीज था तो कंज्यूमर कितना क्वांटिटी परचेज कर रहा था? 12 यूनिट्स। ओके, नाउ व्हेन प्राइस राइजेस रुपीज 18 पर यूनिट, अब पर यूनिट में प्राइस क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब कंज्यूमर कितना परचेज कर रहा है? द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाय 12 यूनिट्स। अभी भी वो 12 यूनिट्स ही कंज्यूम कर रहा है। अब हम लोग को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, ये नहीं दिया है। तो डेल पी क्या हुआ मेरा? 18 माइनस 15 विच इज 3, और ये क्या हुआ? ये तो 0 हो गया। कुछ भी क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है प्राइस के बढ़ने पर भी। अब हम इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। वेरी इजी। ईपी का फॉर्मूला क्या है? डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। ओके, डेल क्यू इज व्हाट? डेल क्यू इज 0, डेल पी इज व्हाट? डेल पी इज 3 इंटू पी बाय क्यू। प्राइस इज 15, क्वांटिटी इज 12। ओके, ऐसे तो हम डायरेक्ट इसको 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, देखिए 3 5 15, 5 by 12, जो भी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0, विच इज ईपी इज इक्वल्स टू 0। ईपी इज इक्वल्स टू 0 जब रहेगा तो हमारा क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 5 नंबर में आ रहे हैं। 5 नंबर क्या बता रहा है? 300 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस इज 20 पर यूनिट। 300 यूनिट क्वांटिटी डिमांड हो रहा था जब प्राइस कितना था? ₹20 था। प्राइस वॉज 20। इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस अगर फॉल हो रहा है 10% से, तो इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 60 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांड कितना राइज हो रहा है? 60 यूनिट से बढ़ रहा है। मतलब ये दिया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है। देखिए 300 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस इज 20 पर यूनिट। 300 इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस 20। अब क्या बोल रहा है? इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, ये नहीं दिया है, फॉल्स हो रहा है 10% से, तो 10% से अगर फॉल होगा तो हम निकालेंगे 20 का 10%। 20 का 10%, 002, कितना हुआ? 2 रुपीज से फॉल हो रहा है, तो चेंज इन प्राइस मेरा क्या हुआ? 2। और यहां पे क्या हो रहा है? जब फॉल हो रहा है तो ये 18 हो गया, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है? फॉल हो रहा है, तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर राइज होता तो हम इंक्रीज करते, है ना, बट फॉल हो रहा है तो 18 होगा। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है? 18 पर यूनिट द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाय 12 यूनिट्स। सॉरी, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। बाय 10% इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 60 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांड कितना राइज कर रहा है? 60 यूनिट्स। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? 360 होगा। Q1 मेरा 360 होगा। हमें क्या निकालना है? प्राइस इलास्टिसिटी। आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम 300 में ऐड करेंगे, 360 आएगा। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है? प्राइस जो है हमारा फॉल हो रहा है। कितना? 10%। मतलब इनिशियल प्राइस हमारा 20 था, तो 20 इंटू 10/100 विच इज 2, तो 2 रुपीज से फॉल हो रहा है, जो हमारा आएगा 18। ठीक है, तो डेल क्यू हमारा कितना है? 60। डेल क्यू हमारा है 60। डेल पी हमारा 2 रुपीज, और प्राइस हमारा इनिशियल प्राइस है 20, इनिशियल क्वांटिटी है 300। देखिए 3 2 6, 2 2 कट गया, तो ईपी हमारा क्या आया? ईपी हमारा आया 2। ईपी जब हमारा 2 आया, मतलब कि ईपी इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 जब होता है तो वो क्या होता है? वो हमारा इलास्टिक डिमांड होता है। क्या होता है बच्चे?
इलास्टिक डिमांड, वेरी इजी, वेरी इजी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ईपी हमारा आ गया, कितना आया 2, ईपी इज मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, कितना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2, ये दे दिया है यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 2, ओके। इफ प्राइस चेंजेस बाय 5%, प्राइस कितना चेंज हो रहा है 5%, मैं फिर से वो फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, ठीक है, मैं फिर से वो फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट लाइन लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, मैं फर्स्ट लाइन लिख देती हूँ। ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन अच्छे से। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2 इफ प्राइस चेंजेस बाय 5%, प्राइस में चेंजेस आ रहा है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ 5%, यहां पे लिखती हूं 5% में 5% चेंज इन प्राइस है। What will be the percentage change in quantity demanded? percentage change in quantity demand क्या होगा, इजी है, देखिए percentage change in quantity demand by percentage change in price, ये फॉर्मूला है, change in price ये फॉर्मूला है, ठीक है। ईपी हमारा कितना दिया हुआ है 2, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें नहीं दिया है, हमें निकालना है, तो यहां पे हम एज इट इज लिख देंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है 5% चेंज हो रहा है, तो 5 2 10, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या आएगा 10। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वेरी इजी है ना। चलो नेक्स्ट, दिस इज माय आंसर 10 मेरा आया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 7 क्या बोल रहा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 0.5, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 6, अब चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है कितना 6, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये निकालना है हमें, ये निकालना है हमें। अगेन वी विल राइट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये चेंज को हम डेल से भी लिख सकते हैं, बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। सो परसेंटेज चेंज, ईपी हमारा क्या है 0.5, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है हमारा 6 बाय, ये हमें नहीं दिया है, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब ये वाला आउट करके यहां आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आउट करके यहां आ जाएगा और ये वाला आउट करके यहां आ जाएगा, ठीक है। तो वी विल डू इट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे 0.5, बट हम नहीं लिखेंगे, हम स्ट्रेट अवे करेंगे 6 बाय 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 6 बाय 0.5 बाय, ये पॉइंट हट के यहाँ 10 आएगा, विच इज वी कैन राइट एज 6 इंटू 10 बाय 5, 5 2 10, 6 2 12, 12 हमारा आंसर है, देखिए 12 हमारा आंसर है, मतलब चेंज इन प्राइस हमारा कितना है 12 है, चेंज इन प्राइस हमारा 12 है।